Hello children, welcome to your maths class with Poonam Bagga. We are studying chapter 3, pair of linear equations in two variables. We are now familiar with all the three algebraic methods of solving any given pair of linear equations in two variables, and these methods are substitution method, elimination method and cross multiplication method. Also we know how to solve a given pair by graphical method. Today we will be dealing with equations which are reducible to a pair of linear equations in two variables. इसका मतलब अभी हमें जो equations दी होंगी वो linear equations नहीं होंगी in two variables, but we will be doing some suitable substitutions and converting them into linear equations in two variables. We begin with this example. Here we have example 17 from your book. Solve the pair of equations. This is the pair. And you can see that the variables x and y are in the denominator. आप देखिए x और y denominator में है. X and y are in denominator, and therefore this pair does not represent a linear pair of equations. So first we will be making some suitable substitutions and then converting them into linear equations. कैसे करेंगे? हम इन्हीं equations को represent कर सकते हैं इस form में भी. Solution we are beginning. The equations are, इन्हीं equations को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 1 upon x. 2 by x को हम लिख सकते हैं 2 into 1 by x. देखिए 2 1s are 2 upon x, तो यही तो है same term. Plus this can be written as 3 into 1 upon y equal to 13. And this second one can be written as 5 into 1 by x minus 4 into 1 by y equal to minus 2. ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये है आपकी सेकंड इक्वेशन. अब आप यहाँ देखिए ये 1 by x दोनों ही इक्वेशंस में है और 1 by y भी दोनों ही इक्वेशंस में है. क्यों ना हम इसकी जगह कोई और वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दें. So let us take 1 by x to be, say, another variable, say p. Let 1 by x equal to p and 1 by y equal to q. हमने p और q लिया है. आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं. आप a b ले सकते हैं, आप u v ले सकते हैं, m n, any variables you can take, any alphabets you can take. Now we can substitute this p in place of 1 by x. जहाँ जहाँ 1 by x है वहाँ हम रखेंगे p और जहाँ जहाँ 1 by y है वहाँ हम रखेंगे q. तो हमारी नई set of equations बन जाएंगी and we write them as the new equations. The equations now can be written as, let us see, 2 into 1 by x. इस 1 by x की जगह तो हम रख रहे हैं p, तो ये क्या टर्म बन जाएगी? ये टर्म बन जाएगी 2p और यहाँ 1 by y की जगह हम रख देंगे q, तो ये पूरी टर्म बन जाएगी 3q. समझ रहे हैं आप? तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2p plus 3q equal to 13. So we can write here 2p plus 3q equal to 13. I hope it is clear. Then the second equation, देखिए आप यहाँ पर again इसकी जगह हम रख देंगे p और ये टर्म बन जाएगी 5p और यहाँ 1 by y की जगह हम रख देंगे q और ये टर्म बन जाएगी 4 into q, that is 4q. So the second equation will be 5p minus 4q equal to minus 2. So we write here 5p minus 4q equal to minus 2. Let this be equation number 3 and this be equation number 4. अब हमारे पास जो ये set of equations है ये है pair of linear equations. यहाँ पर नए वेरिएबल हो गए p और q और ये लीनियर फॉर्म है. आप देखिए इनकी जो पावर है वो 1 है और इसलिए ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स p एंड q. अब हम इन्हें किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. आप जानते हैं तीनों एल्जेब्रिक मेथड्स, कोई सा भी अप्लाई कीजिए. हम अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन मेथड बिकॉज इट इज़ मच ईजियर टू यूज़. सो लेट अस सी. नाउ हैव अ लुक एट दिस वेरिएबल q.
हियर वी हैव 3, हियर वी हैव 4, तो हम दोनों कोएफिशिएंट्स q के दोनों कोएफिशिएंट्स सेम बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे। उसके लिए इक्वेशन 3 को तो हम करेंगे मल्टीप्लाई 4 से और इक्वेशन 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मतलब इंटरचेंज कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन में। सो वी राइट हियर मल्टीप्लाइंग equation 3 by 4 and equation 4 by 3, we get, let us write equation 3 by 4, तो हम सभी टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8p plus 4 3 ज़ा 12q equal to 13 into 4, it's 52. Then here we will multiply by 3. क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? ताकि q के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो इक्वल हो जाएं। सो हम यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 को 3 से और 3 को 4 से, और फिर अकॉर्डिंगली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। सो हियर सेकेंड और दिस फोर्थ इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3. 3 5 ज़ा 15p minus 3 4 ज़ा 12q equal to minus 3 2 ज़ा 6. And now have a look, 12q minus 12q दोनों ही ऑपोजिट साइन के हैं, तो हम ऐड करेंगे। Whenever the sign is opposite we add, और जब सेम साइन हो, दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के, तब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ क्योंकि साइन ऑपोजिट है, सो वी विल ऐड द टू इक्वेशंस। हियर वी कैन ऐड, वी राइट हियर एडिंग बोथ इक्वेशंस। लेट अस सी व्हाट वी गेट। 12q minus 12q, ये तो कैंसिल हो गया। 8p plus 15p, you will get it 23p equal to 52 minus 6, it will be 46, and from here p will be equal to 46 upon 23 and this will be equal to 2. आप 23 की टेबल अप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगा p की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 2। ये मिल गई हमें p की वैल्यू। Now we need to find the value of q. For this we will substitute this p in any of the two equations. Let us substitute in equation number 3. So we write here substituting p equal to 2 in equation 3. We get, let us see what we get. It's 2p plus 3q equal to 13. अब यहाँ पर 2 into p की जगह हम रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 into 2 plus 3q equal to 13. This is 4. 4 plus 3q equal to 13. इससे हमें नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। 4 plus 3q equal to 13, ये हमें मिल गया था। 3q equal to 13 minus 4 और 3q equal to 9. This gives us q equal to 9 upon 3. This is equal to 3. 3 3 is 9 और यहाँ से हमें q की वैल्यू मिल गई 3. अब हमें जो वैल्यूज़ मिली हैं आप देखिए, p is equal to 2 and q is equal to 3. ये वैल्यूज़ मिली हैं हमें वेरिएबल्स p और q की, लेकिन क्वेश्चन में ओरिजिनल वेरिएबल्स थे x और y. p और q क्वेश्चन के वेरिएबल्स नहीं हैं, हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है x और y की। और अब हम उन्हीं सब्सटीट्यूशंस पर वापस चलते हैं। देखिए हमने p तो माना था 1 upon x और q माना था 1 upon y. सो वी मूव फर्दर। नाउ p इज इक्वल टू 1 upon x और ये है इक्वल टू 2। देखिए आप, p हमने माना था 1 upon x और इसकी वैल्यू हो गई 2 एंड q इज इक्वल टू 1 upon y एंड दिस इज इक्वल टू 3। यहाँ से इस एक्सप्रेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे और इस एक्सप्रेशन से हम y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? देखिए आप, अभी x जो है डिनोमिनेटर में है, अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे दोनों ही साइड्स में तो ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा। रेसिप्रोकल आप समझते हैं ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो जैसे ही हम रेसिप्रोकल लेंगे बोथ साइड्स, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और ऐसे ही यहाँ पर y की वैल्यू मिल जाएगी। सो लेट अस
do it that way. Yes, this implies रेसिप्रोकल लेने से 1/x will be x, and अब हम इस 2 का भी तो रेसिप्रोकल लेंगे, तो 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2. इंटरचेंज हो गए. आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से x और 2 आपस में क्रॉस में इंटरचेंज कर लीजिए, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. यहाँ से x ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया. इन दिस वे ऑल्सो यू कैन थिंक. एंड फ्रॉम हियर y विल बी इक्वल टू 1/3. आपने रेसिप्रोकल लिया तो 1/y का रेसिप्रोकल हो गया y/1, और अगर आप इसे 3/1 सोचें तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3, और इस 1 की तो वैल्यू नहीं है, तो y इज इक्वल टू 1/3. आप ऐसे भी सोच सकते हैं. और ये है फाइनल सॉल्यूशन इस पेयर ऑफ इक्वेशंस का, x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3. गॉट इट. और अब हम अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं. और वो कैसे करेंगे, आप वापस उन्हीं इक्वेशंस पे जाइए और जो इक्वेशंस में हमने x और y की वैल्यूज फाइंड की हैं उनको यहाँ पर रिप्लेस करते हैं और देखते हैं कि LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं या नहीं. सो वी टेक दिस फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1. इट इम्प्लाइज 2/, अब आप देखिए x की वैल्यू आई है 1/2, सो वी कैन राइट हियर 1/2 प्लस 3/1/3. ये है आपका LHS. और देखते हैं कि हमें RHS मिलता है या नहीं. नाउ जस्ट हैव अ लुक. यहाँ पर 3 नंबर्स डिवीजन में है और हम कैसे डिवाइड करते हैं, ये नीचे वाला जो नंबर है ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है. जस्ट थिंक अबाउट दिस इन दिस वे, 2 डिवाइडेड बाय 1/2. तो कैसे सॉल्व करते हैं हम, 2 और ये डिवीजन कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 2/1 एंड दिस विल गिव यू 4. 2 2s are 4. बिल्कुल वही काम हम यहाँ करने वाले हैं. दिस विल बिकम 2 इंटू 2/1. रेसिप्रोकल लेकर हम ऊपर इसको ले आते हैं और मल्टीप्लाई में ले लेते हैं. डिवीजन से मल्टीप्लाई में आ गया और रेसिप्रोकल हो गया. इसी तरह से यहाँ भी 3, अब ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन हो गया और रेसिप्रोकल ले लेंगे 3/1. दिस विल गिव यू 2 2s are 4 and here 3 3s are 9 and this is equal to 13 and this is the RHS of this equation. So you can see that the equation is getting satisfied by these values of x and y. तो हमारा आंसर सही है. Let us check whether the second equation is also getting satisfied or not. We take the second equation, equation 2, LHS. Have a look. It's 5/x और x की वैल्यू है 1/2 माइनस 4/y की वैल्यू है 1/3. देखते हैं अब वापस से, आप देखेंगे हमें डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाना होगा और रेसिप्रोकल लेना होगा. सो इट विल बिकम 5 इंटू 2/1. हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल दिया और इस नंबर का 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2/1. सो इट इज़ 5 इंटू 2/1. देन हियर माइनस 4 इंटू 3/1. 5 2s are 10 minus 4 3s are 12 and this is equal to -2 and this is the RHS of the second equation. Just have a look. इसका मतलब हमने जो x और y की वैल्यूज़ निकाली थी वो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं और हमारा आंसर सही है. You can always check your answer by doing this verification work in the rough part of your copy. It's not compulsory to show it in the fair part. If it is asked, then you will have to show. If it is not asked, then you can check your answer on your own in the rough part. Got it? Now we have the second question or example 18 from your book. Solve the following pair of equations by reducing them to a pair of linear equations. By reducing them. Okay? आप देखिए इन equations को ध्यान से देखिए. यहाँ भी x और y आपको कहाँ दिख रहे हैं? डिनोमिनेटर में. और इसलिए ये पेयर ऑफ इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस नहीं है. तो फर्स्ट वी विल हैव टू सब्स्टिट्यूट सम वेरिएबल्स हियर, मेक सम सुटेबल सब्स्टिट्यूशंस एंड देन वी विल कन्वर्ट दीज इक्वेशंस इनटू लीनियर इक्वेशंस. तो आप देखिए हमें किसे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए. यहाँ आप देखेंगे दिस टर्म इट कैन बी रिटन एज 5 इंटू 1/x minus 1. Similarly, this is 1/y minus 2. ओके, इस टर्म को देखते हैं हम.
this term. This can be written as 6 into 1 upon x minus 1. Similarly, this one can be written as 3 into 1 upon y minus 2. तो हमें यहाँ पर इस 1 upon x minus 1 की जगह तो लेना चाहिए कोई न्यू वेरिएबल से u. We can take any variable, any alphabet, so we will take u in this question. तो इसकी जगह हम रखने वाले हैं u और इसकी जगह हम रख सकते हैं v. यहाँ पर देखिए इसकी जगह हम रख सकते हैं v और तब हमारे पास नई इक्वेशंस हो जाएंगी जिनके वेरिएबल्स होंगे u और v और तब वो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस होंगी जिन्हें हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट अस बिगिन द वर्क. फर्स्ट वी रिमूव दिस वर्क. यस, नाउ लेट अस बिगिन. We begin the solution. Let 1 upon x minus 1 equal to u and 1 upon y minus 2 equal to v. हमने ये assume कर लिया है. Now the equations can be written as, now the equations can be written as, okay, first let us number these as equation 1 and equation 2. Now what will this equation become? 5 तो है ही और 1 upon x minus 1 जो इसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाइड है अभी हमने देखा था उसकी जगह हम रखेंगे u. तो हमारी इक्वेशन में ये टर्म हो गई 5u. देन देयर इज प्लस, तो प्लस. अब ये पूरा ही हमने v मान लिया है तो इसकी जगह हम लिखेंगे v इक्वल टू 2. ठीक है, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन. अब इस इक्वेशन को देखते हैं. 6 अपॉन एक्स माइनस 1 तो हमने देखा ही था, इसको हम मान सकते हैं 6 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को हमने u माना है सो इट विल बिकम 6u. देन वी हैव माइनस 3v. 1 अपॉन y माइनस 2 जो इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाइड है उसको हमने v मान लिया है तो ये टर्म हो गई 3v. दिस इज इक्वल टू 1. ये हो गई फोर्थ इक्वेशन. ओके, अब हमें इन्हें सॉल्व करना है एंड वी विल यूज द एलिमिनेशन मेथड वंस अगेन. आप यहाँ देखिए कोएफिशिएंट्स ऑफ v को सिलेक्ट करते हैं और v के साथ यहाँ तो है 3 और ऊपर कोई नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर है 1. ओके, लेट मी राइट इट प्रॉपरली. It is plus in the center and we can take the coefficient as 1. Now what should we do to make the coefficients equal? तो हमें यहाँ इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए तो ये भी 3v बन जाएगा और प्लस 3v माइनस 3v कैंसिल होके हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें सिर्फ वेरिएबल u बचेगा. सो व्हाट शुड वी डू? फर्स्ट वी शुड मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3. सो वी राइट हियर multiplying equation 3 by 3 we get, what do we get? It's 5u plus 1v into equal to 2. So we write here 5u plus 1v. इस पूरे को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 2 इंटू 3. सिंप्लीफाई 5 3 ज़ा 15u प्लस 3v इक्वल टू 6. ये हो गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन. नाउ हैव अ लुक एट दिस इक्वेशन नंबर 5. यहाँ पर है प्लस 3v और यहाँ इक्वेशन 4 में है माइनस 3v. हो गए इक्वल कोएफिशिएंट्स 3 एंड 3. अब हम इजीली इनको ऐड करेंगे क्योंकि एक में प्लस है एक में माइनस है. जब भी साइन ऑपोजिट होगा हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे. सो वी राइट हियर एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5. एडिंग equations 4 and 5 we get, let us first write equation 4. It is 6u minus 3v equal to 1. 6u minus 3v equal to 1 और फिफ्थ इक्वेशन हमारी है 15u plus 3v equal to 6. ऐड करिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. माइनस 3v प्लस 3v कैंसिल. 6 प्लस 15 इट्स 21u इक्वल टू
हियर वी हैव 6 + 1 7, दोनों ऐड हो गए और ऐड करते समय हम साइन चेंज नहीं करते हैं, याद रखिएगा. फ्रॉम हियर u इज इक्वल टू 7/21 and this is equal to 1/3. So this means that u is equal to 1/3. ये मिल गई हमें u की वैल्यू. नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v. तो हम इस u को सब्सटीट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में. लेट अस सब्सटीट्यूट इन दिस इक्वेशन नंबर 3. इट्स easy. 5u + 1v = 2. So we write here substituting u equal to 1/3 in equation 1. We get, or should we substitute in equation 2? आप देखिए अगर हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये बन जाएगा 5 × 1/3 u की वैल्यू. तो ये 3 और 5 कैंसिल नहीं हो रहे हैं. लेकिन अगर हम इक्वेशन 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 1/3 और 3 से ये 6 कैंसिल होके हमें एक इजी टर्म मिलेगी. तो हमें क्या करना चाहिए, इक्वेशन 4 में रखना चाहिए, ना कि इक्वेशन 3 में. सो लेट अस substitute it in equation 4. Here we substitute in equation 4. Substituting u equal to 1/3 in equation 4, we get it's 6u - 3v = 1. 6 into u की जगह हम रखेंगे 1/3 - 3v = 1. ठीक है. नाउ वी कैन इजीली कैंसिल. बीच में मल्टीप्लाई है तो हम कैंसिल कर सकते हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि इस 3 से ये 3 कैंसिल कर दें तो बिल्कुल गलत है. बीच में यहाँ माइनस है. जब भी बीच में माइनस या प्लस हो तो हम कैंसिल नहीं कर सकते टर्म्स को. हम कब कैंसिल कर सकते हैं, जब बीच में मल्टीप्लाई हो. तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6. और अब हमें मिलेगा 2 - 3v = 1. यहाँ से 2 और ये 1 इधर आके माइनस हो गया और -3v इधर जाकर प्लस में हो गया. सो वी हैव इंटरचेंज हियर द टर्म्स. -3v RHS में चला गया और 1 जो था वो LHS में ले लिया हमने. दिस विल गिव अस 1 = 3v और इससे हमें v की वैल्यू मिल जाएगी 1/3. दिस इज द वैल्यू ऑफ v. Now these are the values of the variables u and v, but the original variables were x and y. तो हम वापस उन्हीं सब्सटीट्यूशंस पर चलते हैं. हमने देखिए u और v किसे माना था. u was 1/x - 1 और v था 1/y - 2. So we take the values here. Now u equal to 1/x - 1 and this is equal to u की वैल्यू है 1/3. So this is equal to 1/3 and v is equal to 1/y - 2 and this is also equal to 1/3. अब यहाँ से आप देखिए अगर हम दोनों ही का रेसिप्रोकल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, x - 1 = 3. दोनों ही केस में रेसिप्रोकल लेने पर ये दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएंगी और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 1 और उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज व्हेन वी डिवाइड बाय 1 द वैल्यू रिमेन्स द सेम. सो दिस विल गिव अस x - 1 = 3 एंड यहाँ से हमें मिल जाएगा y - 2 = 3. दिस गिव्स अस x = 3 + 1 -1 उधर जाके प्लस में हो गया. दिस मीन्स x is equal to 4. एक वैल्यू ये हो गई एंड यहाँ से हमें मिलेगा y = 3 + 2 और y = 5. ये हो गई हमारी सेकेंड वैल्यू एंड द सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस. और आप अब फिर से इन्हीं वैल्यूज़ को वापस उन्हीं इक्वेशंस में सब्सटीट्यूट करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं whether we have got the right answer or not. This I leave up to you. Okay. Next we have one more example. This is a word problem. Example number 19 and it says a boat goes 30 kilometers upstream and 44 kilometers downstream. So these are some new terms for you in 10 hours.
In 13 hours, it can go 40 kilometers upstream and 55 kilometers downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. This is the figure. First recall that whenever you ride a bicycle, you must have felt that when we ride a cycle in the direction of the wind, in the direction of the air, it's easy to cycle. जब भी आप साइकिलिंग कर रहे हैं और हवा की स्पीड भी होती है कुछ, हवा के डायरेक्शन में अगर आप साइकिल कर रहे हैं तो आपको हेल्प मिलती है हवा से और आपकी स्पीड बढ़ जाती है. लेकिन अगर आप हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हैं तो आपको और प्रेशर लगाना पड़ता है और फोर्स लगाना पड़ता है और हवा आपको अपोज करती है, तो ऐसे केस में आपकी स्पीड स्लो हो जाती है. सेम इज द केस इन द केस ऑफ रोइंग अ बोट इन वाटर. आप देखिए, अगर आप कोई बोट चला रहे हैं किसी वाटर बॉडी में, वेदर इट बी अ लेक और अ रिवर, तो एक स्पीड तो हो गई आपकी अपनी बोट की. मान लीजिए कि ये वाटर की भी अपनी स्पीड होती है, आप जानते होंगे. मान लीजिए कि वाटर इज स्टिल, बिल्कुल रुका हुआ है. ऐसे केस में जब आप अपनी बोट चलाएंगे तो जो आपकी स्पीड होगी वो होगी ओरिजिनल स्पीड. लेट अस टेक दिस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. रुके हुए पानी में हम बोट की स्पीड को मान लेते हैं x और मान लेते हैं कि पानी की जो स्पीड है उसको y किलोमीटर्स पर आवर, और इस स्पीड को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम या स्पीड ऑफ द करंट. तरंगे जो पानी की होती हैं उसकी स्पीड को हम यहाँ पर इस केस में y मान रहे हैं, मान लीजिए. अब अगर आप पानी की दिशा में ही चल रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वाटर आप चल रहे हैं, तो वो वाटर की स्पीड आपको हेल्प करेगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी. लेट अस टेक इन दिस केस कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम और द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, स्ट्रीम या वाटर आप समझ लीजिए, वाटर इस डायरेक्शन में चल रहा है और आप भी इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये तो हो गई वाटर की स्पीड, ये है स्पीड आपकी. तो ऐसा केस जहां पर यू आर रोइंग अ बोट इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वाटर इज फ्लोइंग, इट इज कॉल्ड द डाउनस्ट्रीम मोशन. डाउनस्ट्रीम मोशन, जहां पर हमारी बोट की जो डायरेक्शन है वो और वाटर का जो डायरेक्शन है वो दोनों ही एक ही डायरेक्शन है, और ऐसे केस में जो आपकी स्पीड है उसको ये वाटर हेल्प करेगा और आपकी टोटल स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि यहाँ पर आपको वाटर भी सपोर्ट कर रहा है चलने में. लेकिन अगर मान लीजिए वाटर इज अगेन मूविंग इन दिस डायरेक्शन, स्ट्रीम जो है इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन और आप चल रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में, दिस इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम और आप चल रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में, आपकी स्पीड है x. तो ऐसे केस में आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना होगा और ये जो स्ट्रीम है ये आपको अपोज करेगी, रोकने की कोशिश करेगी, आपको ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, और ऐसे केस में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई. मतलब आपको ये नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है स्पीड ऑफ द करंट या स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और ऐसे मोशन को हम कहते हैं अपस्ट्रीम मोशन. समझ में आया? तो whenever we are rowing a boat in the direction of the stream, then the motion is called downstream motion. Or whenever we are rowing a boat in the reverse direction of the current, then the motion is called upstream motion. जब भी हम पानी के डायरेक्शन में ही अपना मूवमेंट रख रहे हैं उस मोशन को कह रहे हैं हम डाउनस्ट्रीम मोशन, और जब भी हम पानी के डायरेक्शन के रिवर्स में जा रहे हैं तो उस मोशन को हम कहते हैं अपस्ट्रीम मोशन. और क्योंकि हम यहाँ रिवर्स में जा रहे हैं तो पानी हमें अपोज करेगा और हमारी स्पीड हो जाएगी कम, x माइनस वाई, और जब हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे तो पानी की स्पीड हमें हेल्प करेगी और हमारी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, जहाँ x है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. अगर पानी रुका हुआ है तो आपकी ओरिजिनल स्पीड वो है x, और y किसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम और स्पीड ऑफ द करंट, जो पानी की तरंगे हैं उनकी स्पीड. समझ में आ गई आपको बात? अब हमें इस आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस दी हुई हैं. देखिए, अपस्ट्रीम मोशन में 30 किलोमीटर्स चलने पर और डाउनस्ट्रीम मोशन में 44 किलोमीटर्स चलने पर 10 आवर्स लग रहे हैं. एक केस तो ये हो गया. सेकंड केस में
40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम मोशन में चलने पर और 55 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम मोशन में चलने पर 13 आवर्स लग रहे हैं। और अब हमें ये दोनों स्पीड्स निकालनी है, एक तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, एक स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में बोट की स्पीड, जहाँ पर पानी की स्पीड 0 हो, रुका हुआ पानी, उस केस में हमने अपनी स्पीड मान लीजिए x, और स्ट्रीम की स्पीड हम मान रहे हैं y। ओके, तो यहाँ पर दो सिचुएशंस दी हुई हैं, इन दो कंडीशंस के बेसिस पे हम दो इक्वेशंस बनाएंगे और फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। वी बिगिन विद अज्यूमिंग let the speed of the boat in still water be x kilometers per hour and the speed of the stream be y kilometers per hour। ये क्लियर है आपको? नेक्स्ट, then the speed of the boat downstream, डाउनस्ट्रीम मतलब जिसमें जो करंट है आपको हेल्प कर रहा है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और ऐसे केस में द स्पीड विल बी x प्लस y किलोमीटर्स पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम। ऐसे केस में आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसके रिवर्स डायरेक्शन में वाटर चल रहा है, और ऐसे केस में वो आपको अपोज करेगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, एंड वी टेक द स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम मोशन एज x माइनस y किलोमीटर्स पर आवर। ओके, now what has been given? There are two situations. We take the first case. और फर्स्ट केस में भी अपस्ट्रीम मोशन की बात करते हैं हम। ठीक है, इसमें भी आप देखिए क्या दिया है। इट्स गिवन डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर्स इन अपस्ट्रीम मोशन, सो वी राइट डिस्टेंस कवर्ड। इट्स 30 किलोमीटर्स। अब ये जो अपस्ट्रीम मोशन में टाइम लगा है हम यहाँ वो निकालेंगे, क्योंकि हमें टाइम की ही तो बात और दी है। यहाँ पे देखिए 10 आवर्स लग रहे हैं बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम मोशन, दोनों के लिए टोटल हमें दिया है टाइम 10 आवर्स। तो हम यहाँ पर टाइम निकालेंगे और हमें पता है टाइम टेकन इट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है अपनी छोटी क्लासेस में, और डिस्टेंस है यहाँ पर 30 और स्पीड क्या है देखिए आप अपस्ट्रीम मोशन के लिए x माइनस वाई। सो दिस इज द टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम मोशन। क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट द डाउनस्ट्रीम मोशन। इसमें अगेन the distance covered is different. Distance covered, it is given equal to how much? 44 kilometers, as you can see. So we write here 44 kilometers, and again we will have to find the time taken in the case of downstream motion. So time taken, अगेन इट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है आपका 44 और स्पीड डाउनस्ट्रीम मोशन के केस में है x प्लस वाई। आप देखिए x प्लस वाई, ऑल दिस इज इन आवर्स, दिस टाइम इज इन आवर्स, दिस टाइम ऑल्सो इज इन आवर्स एज पर द यूनिट्स गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ द टोटल टाइम for upstream motion as well as for downstream motion. Total time first case में हमें दिया है 10 hours. So we can write here total time. Let me write it here. इसके नीचे आना चाहिए पर मैं यहाँ लिख रही हूँ total time taken. It will be 30 upon x minus y plus 44 upon x प्लस वाई इक्वल टू 10 आवर्स दिया है। ये हो गया टाइम अपस्ट्रीम मोशन का, ये टाइम हो गया डाउनस्ट्रीम मोशन का, और इन दोनों का सम हो गया 10 आवर्स जो कि क्वेश्चन में दिया है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द सेकेंड केस। केस सेकेंड, अगेन
In this, we will deal with upstream motion first. और इसमें भी पहले हम देखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम मोशन, मतलब पानी के रिवर्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हो गया यहाँ पर 40 किलोमीटर। सेकेंड केस में बात कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ से सेकेंड केस स्टार्ट हो रहा है, तो हम लिख रहे हैं 40 किलोमीटर्स। और टाइम टेकन, इट विल बी अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 40 और स्पीड अपस्ट्रीम मोशन में आपको पता है ये हो जाएगी x माइनस वाई, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन है तो कम हो जाएगी स्पीड, एंड दिस विल बी इन आवर्स। अगेन वी विल टॉक अबाउट डाउनस्ट्रीम मोशन। In this case again, first we will deal with the distance covered in downstream motion, मतलब पानी के ही डायरेक्शन में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया। क्वेश्चन में दिया है ये 55 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम, सो वी राइट हियर 55 kilometers. And now again the time taken, it will be equal to distance upon speed. Distance is 55 and the speed is x plus y. क्योंकि हम पानी के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, पानी हमें हेल्प करेगा और स्पीड प्लस में हो जाएगी। So this will be in hours. This is the time. Now, according to the question, total time taken this will be this 40 upon x minus y plus this time 55 upon x plus y. This total time is given to be equal to 13 hours and this is the second equation. मिल गई हमें दो equations. Let us rewrite these equations and then we will see how to solve these equations. We take a new page. The equations are the first one is this one, 30 upon x minus y plus 44 upon x plus y equal to 10. So we write here 30 upon x minus y plus 44 upon x plus y equal to 10. This is the first one. Then we have the second one, 40, 55 and 13. So 40, 55 and 13. Here we have x minus y plus here we have x plus y. This is the second equation. Now have a look. Again, these are not linear equations. यहाँ पर आप देखेंगे ये डिनोमिनेटर में है x और y और हम चाहते हैं ये लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस हो जाएं, कन्वर्ट हो जाएं। तो कैसे करेंगे? वी विल हैव टू मेक सम सब्सटीट्यूशंस। आप देखिए ये 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसका मतलब 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो उसको हम मान लेते हैं u. दिस टर्म, लेट अस फोकस एट दिस टर्म. दिस कैन बी रिटन एज 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और अब इसकी जगह हम मान लेते हैं कोई वेरिएबल u. इसी तरह से ये वाली टर्म आप समझिए 55 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो इसकी जगह हम मान लेते हैं v, तो ये टर्म हो जाएगी 55v और ये टर्म हो जाएगी 30u. ठीक है, तो अब इस तरह से ये हो जाएगा 30u, ये हो जाएगा 44v, ये हो जाएगा 40u और ये हो जाएगा 55v, और हमें एक नई सेट ऑफ इक्वेशंस मिल जाएंगी. लेट अस erase all this and do the fair work now. This one also. It's 30 upon x minus y and here we have
50 upon x plus y, and here we have 40. Is it okay? 40, here we have 55. Okay, it's wrong. 55, 55, and here we have 13. 40, 55 and 13. Here we have plus, as you can see in between. Yes, now we will be solving these. Let 1 upon x minus y be equal to u, and 1 upon x plus y be equal to v. Then the equations can be written as this can be written 30 u first one plus 44 v equal to 10, and this second one will become 40 u plus 55 v equal to 13. So these are the two equations, and now we give them the numbers 3 and 4. ठीक है, अब ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स u and v. Now we will use any of the three methods. Let us use elimination method once again, and you can use substitution method also, cross multiplication method also. So here we will make the coefficients of u equal. अब देखिए u के साथ यहाँ 30 है और यहाँ 40 है. अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 120, और इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी बन जाएगा 120. तो आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें ये दोनों जो नंबर्स हैं, जो कोएफिशिएंट्स हैं u के, ये इक्वल मिल जाएंगे. सो हियर वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4 एंड इक्वेशन 4 बाय 3. Let us remove this. Yes, we will write. Let me make some space for writing. Multiplying equation 3 by 4 and equation 4 by 3, we get, let us write, इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 4 से, तो 4 3s are 12, it will become 120u plus 4 into 44, it will give us 176v equal to 40. और इस इक्वेशन को, फोर्थ इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 3 से, सो वी मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4s are 12, it will become 120u plus 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 को, we will get 165, and then v equal to 13 3s are 39. Okay, now what we will do, just see 120u 120u, the coefficients are equal now, पर अब इन दोनों का साइन सेम है, तो हमें यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होगा, जिससे एक टर्म का साइन माइनस हो जाए और दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाए. सो वी विल राइट नेक्स्ट दैट सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, वी टेक अ नेक्स्ट पेज. सब्ट्रैक्टिंग both equations, we get, let us write the equations once again, 120u plus 176v equal to 40, and we have 120u plus 165v equal to 39. Now for subtraction we will change the sign of this बॉटम इक्वेशन, ये प्लस से माइनस और ये भी हो गया माइनस. दीज टू टर्म्स विल बी कैंसल्ड. 176 minus 165, you will get it 11v, and here we will get 1. यहाँ से v की वैल्यू आ गई 1/11, ये मिल गई हमें v की वैल्यू. अब हम इस v की मदद से u की वैल्यू निकालेंगे और कोई भी एक इक्वेशन में इसको रख सकते हैं. वी विल substituting
V equal to 1 by 11 in equation number, let us have a look. In equation 3 we can substitute. Okay, we will use equation 3, 30, 44 and 10. Just remember, in equation 3 we get it's 30u plus 44v equal to 10. अब यहाँ पर ये हो गया 30u plus 44 into v की जगह हम रखेंगे 1/11 equal to 10. Now this 44 will be cancelled by 11, बीच में multiply है तो हम easily cut कर सकते हैं. 11 ones are 11 fours are here. This will give us 30u equal to 10 minus 4. ये 4 RHS में जाके -4 हो गया. So 30u is equal to 6 and this implies that u is equal to 6/30 and this is equal to 1/5. So this gives us the value of u equal to 1/5. ये मिल गई हमें u की वैल्यू और ये रही v की वैल्यू, पर ये ओरिजिनल वेरिएबल्स नहीं है. ओरिजिनल वेरिएबल्स क्या लिए थे हमने? x और y, और ये हैं u और v. तो अब हम वापस उन्हीं सब्स्टिट्यूशंस पे चलते हैं और x और y की वैल्यूज निकालते हैं. लेट अस गो बैक. वी हैड अज्यूम्ड हियर वी हैव, यहाँ देखिए आप, u is equal to 1/x minus y and v is equal to 1/x plus y. So we move further. u is equal to 1/x minus y and this is equal to 1/5 and v is equal to 1/x plus y and this is equal to 1/11. Okay, from here we can see if we take the reciprocal, this will imply x minus y equal to 5 and x plus y equal to 11. दोनों का ही रेसिप्रोकल लेंगे तो दोनों ही न्यूमरेटर्स में आ जाएंगे और हमें ये दोनों एक्सप्रेशन मिलेंगे. पर अभी भी हमें x और y की इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं मिली हैं. अगेन वी आर गेटिंग अ पेयर ऑफ इक्वेशंस. दिस इज वन इक्वेशन, दिस इज अनदर इक्वेशन. तो यहाँ हमें एलिमिनेशन मेथड एक बार फिर से सेकेंड टाइम अप्लाई करना होगा. हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस में आप देखिए ये -y है, ये +y है. अगर दोनों को ऐड कर लेंगे, साइन ऑपोजिट हैं और कोएफिशिएंट्स भी इक्वल हैं, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. सो वी राइट हियर एडिंग these two equations. We get x minus y equal to 5 and x plus y equal to 11. Add कर लीजिए, these two terms will be cancelled. -y plus y cancel हो गए और ये मिल जाएगा हमें 2x और यहाँ हो जाएगा 16. इससे x की वैल्यू आ गई 16/2 equal to 8. So this implies x is equal to 8. और अब y की वैल्यू कैसे मिलेगी, आप इस इक्वेशन में रख लीजिए. फ्रॉम इक्वेशन लेट अस गिव द नंबर्स. हमने 4 कहाँ तक नंबर ले लिया था, देखिए आप, ये इक्वेशन है 4, तो नेक्स्ट इक्वेशन नंबर होना चाहिए 5. दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6. सो फ्रॉम इक्वेशन 6 वी गेट x plus y equal to 11 और x की जगह अगर हम 8 रख दें तो 8 plus y equal to 11. This implies that y is equal to 11 minus 8 and this gives us y equal to 3. ये मिल गई हमें y की वैल्यू. और रिकॉल कीजिए x और y क्या लिए थे हमने. Yes, x was the speed of the boat in still water and y was the speed of the stream जो हमसे पूछा था. So we can now straight away write the answer in words. Hence the speed of boat in still water, it is equal to how much? X is equal to 8 here, 8 kilometers per hour and the speed of the stream, it is equal to this
3 kilometers per hour. And now you can verify your answer by replacing these values in the original equations that we had got. तो आप ये खुद कर सकते हैं, अपना आंसर चेक कर सकते हैं. I leave this up to you. So these were some equations in which we were not having linear equations, but by making some suitable substitutions, we were able to convert them into linear equations and then solve them. We will do exercise 3.6 in our next class and take up more such problems. Till then, practice these questions. Goodbye.